call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, we did talk about the increasing and decreasing of a function. And if you recall, the two questions were given to you in your homework, specifically related to the trigonometry. So I'm hopeful that many of you have already done those questions. Fx is equal to sine x plus cos x in the some specific given interval, and the other one was sine power 4x plus cos power 4x. So please do it if not done yet. Today I'm going to start with a very important idea and concept of maxima and minima of a function. So you are given with any function y equal to fx. There will be two different approaches. One is graphical and another is algebraic using derivatives. So graphically we can find out the maximum and minimum value of a function in most of the cases. But of course, we already have noticed that every time we may not be able to graph the function. In that case, we need to depend on the concept of derivatives. But I'll take the derivative later on. Initially, let's begin with the basic idea of maxima and minima. So please check out on your screen. There's a simple definition. Let f be a function defined on the interval I. Now, interval I refer to any interval. It may be your closed interval, open interval, say 1 comma 2, or it may be your real domain also. Then we say f is said to have a maximum value in the interval I if there exists a point C such that f of c is greater than f of x for all x belongs to that interval I. So whatever values are taken by the function, and if there is a value x is equal to c, wherein f of c is greater than f of x, then the function is assumed to set assuming the maximum value. And number f of c जो हो जाएगा, put x is equal to c in the function, so of course f of c will be the maximum value of the function. और c को क्या कहेंगे? C will be known as the point of maximum value. I will demonstrate this using a graph and then we will consider some question based on it. Similarly, we define and talk about minimum value. So f is set to have a minimum value in I if there exists a point C such that f of c is less than f of x. Of course, when I am saying minimum value, so if there exists a point C such that its value at the function is less than any other value of any x in that interval, so this would be definitely the lowest or the minimum value. And we say f is said to have an extreme value. Extremum is assumed, that means either a function has assumed the maximum value or the minimum value, or f of c will be known as the extreme value of f, और c को क्या कहेंगे? Extreme point means a point wherein my function is assuming its maximum or minimum value. In fact, some of you must have heard, or in even 11th also we talked about a term as critical points. So it's actually talking about the critical points. सी येस ऑफ कोर्स अभी हमने बात करी नहीं है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की. I'll be coming to that portion. Though in NCERT the global word is not used. Check it out in this graph. Look carefully. When I
Look at this, x is equal to c. Here is the f of c, ये x equal to c के ऊपर. This is the value f of c. Now observe from left of it or right of it. If I am coming approaching to c from left hand side, what do I note? All the values are less than f of c. If I focus on this particular point, look at my pointer. So when I am over here at this point, the corresponding value of function is this, which is clearly less than f of c. If I consider say this point and check out the value of the function, वो यहाँ है, which is again less than f of c. Consider any other point, you can easily observe the same behavior. So in a specific interval, wherever say my function is defined, I am assuming here that this function is defined from say 0 to say this is x is equal to 4. This is my assumption, right? So between the intervals 0 to 4, what I have observed that my function is taking the maximum value at this particular point. इसीलिए हम x equal to c को क्या कहेंगे? Point of maxima यहाँ पर. There are the different terms: local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima, global maxima, global minima. We will be covering them in due course of time. अभी सिंपल टर्म यूज हो रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा. अगेन चेक दिस आउट. आई एम एज्यूमिंग कि यहां पर ये होल दिए हुए हैं, राइट? इसका मतलब 1 के ऊपर ये नहीं है, यहां पर वैल्यू एज्यूम कर पा रहा है बिकॉज देयर इज अ होल. एंड अगेन एट x इक्वल टू 4 ये वैल्यू अचीव नहीं हो पा रही है. सो व्हाट डज दैट मीन? इफ आई कंसिडर दिस ग्राफ, तो 1 के ऊपर लग रहा था कि इट इज हैविंग द मिनिमम वैल्यू, बट सिंस देयर इज अ होल, होल माने x equal to 1 is not included, so this function doesn't assume the minimum value. Same way x equal to 4 के ऊपर भी this is not achievable, so it doesn't have any maximum value as well. तो इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं तो it has got no maximum or no minimum value. सेम वे अब सी वाला ग्राफ तो बहुत इजी है समझना. व्हेन आई लुक एट दिस ग्राफ, समहाउ इट इज रिजेंबलिंग विद अ पैराबोला. तो अगर ये एक्स इज इक्वल टू सी है तो आप चेक करिए यहां पर इस केस में क्या हो रहा है. अगर मैं इसके लेफ्ट साइड से कोई भी पॉइंट देखता हूं, ये देखिए, एक तो सबसे पहले सी के ऊपर दिस इज f of c, और अब आप इसके अलावा कोई भी वैल्यूज को अगर देखना शुरू करें, ये आ रही है वैल्यू, आई चूज दिस पॉइंट. इसके ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखें सेम है, आई चूज दिस पॉइंट. तो हर एक पॉइंट के ऊपर द फंक्शन इज अज्यूमिंग द वैल्यू ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, which value? f of c. So in this case we say at x is equal to c, my function is assuming the minimum value. आयुष, जब हम यहाँ लिमिट आप कह रहे हो, पिछले वाले में आप बात कर रहे हो b के अंदर x stands to 1 plus, the basic idea is यहाँ पर जब भी होल लगा दिया है, आप यहाँ इससे पहले आ रहे हैं, यू आर अज्यूमिंग से दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बट जब आप कहते हैं लिमिट का कंसेप्ट, इट शुड बी क्लियर. व्हाई अगेन दिस पॉइंट? आई कैन बी मोर क्लोजर टू 1, आई कैन बी मोर एंड मोर क्लोजर टू 1. तो इसीलिए जितना क्लोजर चाहूं आई कैन एज्यूम, और उसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज फंक्शन एज्यूम करने वाला है. तो उनमें से यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. इसीलिए इवन इफ आई कंसीडर द आइडिया ऑफ लिमिट्स, आई विल नॉट गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. हाँ, अगर मैं यहां पर होल की जगह ये कंप्लीट ऐसे कर देता, तब ऑफ कोर्स 1 के ऊपर
मिनिमम वैल्यू हो जाती। See, in examination, of course, generally no one is going to ask this. वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट आंसर करना होगा. But my focus, as always, is on the basic understanding of the concepts. Check out this question. Find the maximum and minimum value of this function. अब आपको सिंपल एक पैराबोला दिया एंड एक्स इज अ रियल. तो जब मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा, अभी मैं डेरिवेटिव से लिंक नहीं कर रहा हूं. हियर इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. y equal to x square is our upper parabola. Now looking at the graph only, you can check it out. What is its minimum value? Anyone? Basic idea is when we are getting on talking about the minima और maxima, हम इस फंक्शन की रेंज की बात कर रहे हैं. यस आयुष, प्रणव, गुड. सो जब हम मिनिमा, तो लुक एट द ग्राफ केयरफुली. इस पॉइंट के ऊपर ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है. तो यहाँ मिनिमा, और ग्राफ कितना भी ऊपर एक्सटेंड हो सकता है टू इंफिनिटी. देयरफॉर मैक्सिमा वैल्यू नॉट एग्जिस्ट और मिनिमम वैल्यू इज 0. राइट भानु. तो अब आप चेक करिए, वो ये ना, मैक्सिमम वैल्यू हम इंफिनिटी नहीं कहेंगे, मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट कहा जाएगा. जैसे मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, वी नो x square is always greater than or equal to 0. That is, फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, और माय फंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to infinity. दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और रेंज ही तो मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रही है इस फंक्शन की. So you understand using the graph, you understand using this algebra, और लेटर हम बात करेंगे लिंकिंग दिस विद द डेरिवेटिव्स आल्सो. तो अभी फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने डेरिवेटिव के साथ कहीं पर लिंकेज नहीं किया है. इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर 11th क्लास की बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज अ क्विक क्वेश्चन. Modulus function. So we know the graph of this function. So what's the answer? Yes, it's a V graph and exactly the same answer. Yes, 0 and infinity. यहाँ पर ये मिनिमम ले रहा है और मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि मॉड एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. दैट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन 0 to infinity. तो इसीलिए ये तो मिनिमा हो गया, और मैक्सिमा जैसा मैंने कहा, आप क्या कहेंगे? मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट. प्लीज डू नॉट से इट इज इंफिनिटी. यस, सिग्नम फंक्शन आपकी क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? आप सोचिए. 0, -1 एंड 1. तो उनमें से अब आप खुद, आपके पास आंसर है. मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1. मैक्सिमम विल बी 1. सर कहाँ अचीव हो रहा है अगर पूछे तो? वो आप वो एग्जैक्ट एक्स तो निकाल नहीं सकते ना. व्हेनेवर एक्स इज नेगेटिव, at any negative real number, the function is achieving its minimum value. Any negative real number. तो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है उस केस में. इमेजिन द ग्राफ सिग्मम का, आपको पता है ये हो गया, और माइनस के ऊपर ये आपके पास आ जाता है. तो ये वैल्यू -1 अचीव कब हो रही है? एट एनी, ओवर हेयर, एनी नेगेटिव रियल नंबर. तो
इनफाइनाइटली मैनी नेगेटिव रियल नंबर्स के ऊपर फंक्शन विल एज्यूम द मिनिमम वैल्यू एज -1. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पर मैं मिनिमम की ही बात कर पाऊंगा. तो देयर मे बी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स और आंसर सबके ऊपर सेम आ रहा होगा. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नेक्स्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. पहले बात करी गई है एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन, पर पहले डिफाइन कर लेते हैं. By monotonic function f in the interval I, we mean f is either increasing or decreasing function. तो आप चेक करिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और साथ में कह रहे हैं मोनोटॉनिक फंक्शन assumes its maximum or minimum value at the end points of the domain. एंड अ मोर जनरल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. क्या मतलब हो गया इस चीज का? ये ऐसे आप सिंपल समझिए. से देयर इज अ ग्राफ ऑफ सम फंक्शन लाइक दिस, राइट. ये है, मान लो x इज इक्वल टू 1, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, मैंने क्लोज इंटरवल लिया है, एंड से दिस इज से x इज इक्वल टू से 6, राइट. तो इस ग्राफ को देखते ही मुझे पता है f ऑफ 1 जो होगा, ये ग्राफ है एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का, तो f ऑफ 1 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू होने वाली है. f of 6 will be the maximum value for this function. Whatsoever may be the definition of the function, आप सिर्फ x को 1 और 6 replace कर देंगे. And it is because at x equal to 1 and 0 or 6, मेरे पास ये गया था graph of some strictly increasing function. Same way you can assume and talk about the decreasing function, and it is hence related with the continuous function. आपको पता है continuous function जो मैं without lifting my pen easily draw कर सकता हूं. Look at this graph. Note carefully, this is a graph of some say phi equal to fx, right. At this particular point, इस पॉइंट के ऊपर ये x is equal to, मान लीजिए ये a है, this is x is equal to b, x is c, and this point is x is equal to d. So what is my observation? While look at x is equal to a के लेफ्ट से मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा था. ये डिक्रीज फंक्शन है, चेक करो, ग्राफ इसका डाउनवर्ड आ रहा है, और जैसे ही x इक्वल टू a को क्रॉस करा, इट स्टार्ट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो आई एम फोकसिंग ऑन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेबरहुड? जैसे हम अपने बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट लोकल पड़ोसी की बात कर रहे हैं, तो मेरे x इक्वल टू a के लेफ्ट के अंदर लेफ्ट साइड फंक्शन वाज डिक्रीजिंग. x इक्वल टू a को क्रॉस करते ही माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो इस पॉइंट को क्रॉस करने में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बिहेवियर हो रहा है. और याद रखिए, डिक्रीजिंग के केस में f dash x is less than 0, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इंक्रीजिंग के केस में f dash x is greater than 0. So what happened at x is equal to 1 a? Again repeating, while crossing x equal to a,
from left side to right hand side, my function's derivative changed its sign from negative to positive. लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग फंक्शन था. चलिए इसको और बेटर वे में एक बार समझ लेते हैं. चूज एनी पॉइंट ओवर हेयर, ये इसके नेबरहुड में यहां, और अब मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं इस पॉइंट के ऊपर. ये कुछ ऐसे निकलने वाला है टेंजेंट. ये इससे थीटा बनने वाला है, और थीटा क्लियरली ऑब्ट्यूस होगा. थीटा ऑब्ट्यूस का मतलब इसका जो स्लोप है, माने डेरिवेटिव, वो नेगेटिव होगा. और फिर आप ऑब्जर्व करिए यहां पर कोई भी पॉइंट बिल्कुल इसके राइट साइड के नेबरहुड में, इस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा जाने वाला है. नॉट नेसेसरली कि जीरो से क्रॉस करेगा, ये बाई चांस बन गया. और अब अगर आप इस एंगल थीटा को देखते हैं, एक्यूट बना, एंड व्हेन थीटा इज एक्यूट डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव. तो व्हाट डिड आई नोट, x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव था नेगेटिव, राइट साइड पर आते ही डेरिवेटिव का साइन और उसका बिहेवियर चेंज हो गया एज पॉजिटिव. और उसके ऊपर अगर आप चेक करें x इक्वल टू a, यहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या मिनिमम वैल्यू ले रहा है? Yes, is it taking the maximum or minimum value at x equal to a? मिनिमम. मिनिमम, राइट. तो यहां हम इसको एक्चुअली अब धीरे धीरे बात करने वाले हैं अबाउट द लोकल मिनिमम. तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मैंने इस पॉइंट x इक्वल टू a के बिल्कुल नेबरहुड की बात करी है. तो लेफ्ट से राइट आने में ही एकदम से मेरा जो एक टेंजेंट था वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया. वो डेरिवेटिव आपके पास सामने ही था, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया. If nature is changing at a, then there will be two tangents at a. Tangent will coincide, or for an instant that will be parallel to x-axis. आप सोच के देखिए, अब यहाँ वो विजुलाइज करवाना पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक आइडिया वो क्या होता है कि आपके पास जो ये टेंजेंट लाइन थी, ये वाली, ये जो मैंने बनाई है, और एक ये रेड कलर से, ये जैसे ही मैं यहां से क्रॉस करके दिखाऊंगा वो एक ऐसा मूवमेंट आएगा कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट. और इसीलिए वो एज अ वर्किंग रूल हम लेंगे कि व्हाइल क्रॉसिंग x इक्वल टू a, डेरिवेटिव जस्ट उससे पहले तो लेस देन जीरो था, फिर जस्ट उसको क्रॉस करते ही ग्रेटर देन जीरो हो गया. एंड इसका मतलब व्हेन आई कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स, वी से दैट डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका मतलब डेरिवेटिव हैज टू बी इक्वल टू जीरो. और डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? दैट देयर विल बी द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और यहां पर f डैश x एक्चुअली हो जाएगा इक्वल टू जीरो. इन एग्जामिनेशन अगेन इतना टेक्निकली डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड नहीं है. आपके पास सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो अब मैं लेने वाला हूं. जस्ट एक चीज क्विकली और देख लीजिए, जैसे अगर मैं पॉइंट बी पे फोकस करता हूं, प्लीज एवरीवन चेक इट आउट, x इक्वल टू बी, और अब आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा द वे आई हैव डिस्कस्ड. लेफ्ट साइड से क्या हुआ है, टेंजेंट जो भी जाएगा एक्यूट एंगल बना रहा है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव था. और जैसे ही मैंने इसको क्रॉस करा x इक्वल टू बी को, मैं यहां आ गया, और इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट इमेजिन करें, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया. सो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ है.
Hence B is referred to as the point of local maxima. तो इसीलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने लास्ट वाला एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो 6.2 फिर 6.4 लिया है, बट आई हैव अरेंज्ड माय क्लासेस इन सच अ वे क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कंसेप्ट आल्सो इज एग्जैक्टली व्हाट वी लर्न इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो डेरिवेटिव निकालना और इक्वल टू जीरो के रखना, यहां तक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था. सेम वे वी विल बी रेफरिंग ओवर हेयर. आई फॉरगेट टू आस्क टू राइट गिव योर अटेंडेंस. चलिए प्लीज मार्क योर अटेंडेंस क्विकली. और जो मैंने अभी कंसेप्ट के ग्राफिकली विजुलाइज करवाया है दैट इज एक्चुअली नेम्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो एज अ रूल अब हम उसे याद करने वाले हैं, दैट विल फॉलो वेरी सून. So as now we have seen local maxima and local minima. Here is the definition. Understand it yourself. Very simple. I already have discussed this. और ये भी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अब बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा एट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो ये तो क्विक चेक है. When say C is a point of local maxima, check out this graph. यहां पर आप चेक करिए मैक्सिमा रहा है इस फंक्शन का, वो देखते ही पता चल रहा है. तो इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन यहां पर चेंज हुआ होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लर्न दिस रूल. ये जो स्टेटमेंट अब आई है ना, thus f dash x changes the sign from positive to negative as x increases through C. x increases through C का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ में आ रहा हूं, and that will be referred to as a point of local maxima. Same way local minima already discussed. अब यहां डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होने वाला है. A maximum or minimum value of a function is called the extremum value. तो f of c या मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों को ही हम कहते हैं कि ये इस फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू है. So if f dash x exists, we are assuming, because not every function is differentiable, but here in general we are assuming our given function is differentiable and fx has the maximum or minimum value at c, then at that particular point derivative will be 0. So derivative equal to 0 रखना है जब भी हम बात करेंगे to get the maximum or minimum value. और पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हम रखते हैं, they are referred to as the stationary point or the turning points. They are little bit different from what we call the critical points. एक टर्म क्रिटिकल पॉइंट भी आती है, वो क्या हो जाता है, इसके साथ एडिशनली एक और कंडीशन आ जाएगी. फॉर स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट डेरिवेटिव हैज टू बी 0.
बट फॉर क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव जीरो हो और इट इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो। तो डेरिवेटिव अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में कह दूं, ऐसा कुछ आ रहा है, वो वाले पॉइंट्स कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। चेक आउट दिस डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। लोकल मैक्सिमा, मैंने नेबरहुड की बात करी थी कि मैंने एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कर लिया इन रिस्पेक्ट टू द पॉइंट x इज इक्वल टू c, और अगर हमने नोटिस करा कि f ऑफ c जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x आ रहा है फॉर ऑल x इन दिस इट्स नेबरहुड, then it is a local maximum value. Similarly, we can talk about local minimum value. From problem point of view, जो क्वेश्चंस आएंगे वहां हम ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, ये याद रखिए, ये कंसेप्ट के लिए है। प्रॉब्लम्स को जब मुझे सॉल्व करना है, जो मैं बताने वाला हूं, वहां डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आएगा। दिस इज अगेन वी ऑलरेडी हैव नोटिस्ड सी के ऊपर ये थोड़ा सा पॉइंट इन्होंने बुक में सही नहीं दिखाया। अगर मैं इसे कह रहा हूं यहां, तो दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी। तो इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, चाहे मेरा ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का हो या ये वाला पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा का हो। एट बोथ द पॉइंट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो। अगेन ये टेंजेंट कैसे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड। यू नीड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट अगर क्लियर हैं आपके, बेसिक आइडियाज 11th के, तब ये कहीं ज्यादा बेटर क्लियर होता है। चेक आउट दिस। सो मैंने कहा था ना क्रिटिकल पॉइंट्स, उसमें क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है। A point C in the domain of a function at which either derivative is zero or f is not differentiable, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है, क्योंकि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो जहां था उसे तो हमने स्टेशनरी पॉइंट भी कहा था, बट क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए वो पॉइंट जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल भी ना हो। Now look at this graph of cubic, fx is x cube. Recall this graph, ये हम देख चुके हैं already. It is possible that there exists a point on the graph where sign of derivative doesn't change. मतलब लेफ्ट से आ रहा हूं या राइट से आ रहा हूं। आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव चलो निकाल के देखिए। डेरिवेटिव क्या है इसका, 3x²। अब आप जरा जीरो से लेस कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, जीरो से बहुत नियर बाय वैल्यू, मैं -1 ले लेता हूं, आप बहुत नियर बाय वैसे सोचना, और मैं 1 के ऊपर सोच लेता हूं। चेक इट आउट, इन बोथ द केसेस आई एम गेटिंग द आंसर एज 3 ओनली। इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन तो चेंज नहीं हुआ ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा जब मैंने क्रॉस करा है इस पॉइंट को। तो इफ देयर इज नो चेंज in the sign of derivative of a function, that point is known as point of inflection. Again repeating, the points on the graph of the functions where there is no change in the sign of the derivative, at that point नेगेटिव से नेगेटिव रहे या पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे। तो इस एग्जांपल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा है जब मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस किया इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो पॉइंट 0 इज रेफर टू एज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन।
So this is the conclusion of what we have discussed today. First derivative test. Check this out. This is only taken from your NCERT book, the basic definition. और मेन देखो आपको क्या याद रखना है. If f dash x changes the sign from positive to negative as x increases through c, तब वो पॉइंट c क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और f ऑफ c क्या हो जाएगा? वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू. Same way you can talk about the second and third part. Visualize this situation here quickly, last minute. So यहाँ हम देख चुके हैं इस पॉइंट के ऊपर, clearly it is a point of local maximum. इस पॉइंट को अगर मैं बात करूं C2, it is clearly a point of local minimum. देखते ही पता चल रहा है. But look at this particular point. यहां क्या हुआ? ग्राफ ऐसे जा रहा था, स्मूथ ग्राफ, और फिर पॉइंटेड एज बन गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पॉइंटेड एज बन जाए, पॉइंटेड एज बन गया, या इस पॉइंट को देखो आप, C4, यहां पर भी ग्राफ कैसा जा रहा है? ये और ये, तो ये पॉइंटेड एज बन गया है. तो इफ देयर इज अ पॉइंटेड एज, दे आर द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. यहां पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और इसीलिए नॉन डिफरेंशिएबल तो है, बट स्टिल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और ये वाला पॉइंट इसका लोकल मिनिमा है. तो लास्ट स्टेटमेंट, even if the function is not differentiable, we have the possibility that the local maxima and local minima still exist at those particular points. Even if my function is not differentiable at some specific point, still the local maxima and local minima may exist at that particular point. So that's all for today's class. Please mark your attendance and then you can leave the class. Mark your attendance, everyone. और रिवाइज करना अच्छे से. इजी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा. यू नीड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस. You can leave the class now. Thank you, sir. Yeah, thank you.